Hello, 11th class. How are you all? बच्चों, in previous lecture we were discussing the function, the domain of the function, range of the function, and codomain of the function. Once again, I repeat the definition of function. A relation f from a set A to set B is said to be a function if each element of A has unique image in B. Then f is said to be function. What was the domain? Domain means set A is called. If the function f is defined from A to B, then set A is called domain of the function. Set B is called codomain of the function. And the set of elements which are associated to some element of A is known as range of the function. Now we have to discuss some special functions. Now our topic is some standard real function. Real function means the function which is defined from set of real number to set of real number. R to R defined. Our first type is constant function. Constant function. किसको कहेंगे आप constant function? A function f from R to R. This is real, set of real number. A function f such that R to R, such that fx is equal to c. For all x belongs to R means जो भी आपका x की वैल्यू होगी वो सब सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स होंगे एंड c इज कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस a fixed number, fixed real number is called a constant function. कैसा फंक्शन होगा? fx is equal to c. fx is equal to c. आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं. हम कह देते हैं भाई fx is equal to 2. ये भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है. fx is equal to k, ये भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है. fx is equal to c, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है. fx is equal to 5, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है. आप ऐसे लिख सकते हैं y is equal to 5, ये भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि y is equal to क्या होता है fx. So this type of function is called constant function. Now what is the graph of this function? कैसे ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन का ग्राफ? ये आपका ग्राफ है भाई. This is x-axis, y-axis, and this is the y is equal to c. Y is equal to c. This is the graph. आप x की वैल्यू कुछ भी चेंज करें. x is equal to 1, then y is equal to c. x is equal to 2, then y is equal to c. x is equal to 3, then y is equal to c. This type of graph is known as. आप c की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. This type of function is known as constant function. fx is equal to c. अगर fx is equal to c है, उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर. सेट ऑफ रियल नंबर का मीनिंग क्या है? x की क्या वैल्यूज हैं? फ्रॉम -infinity to +infinity. These values are of x. तो आपका ये है आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन. रेंज ऑफ द फंक्शन. रेंज मींस कौन सा मैंने डेफिनेशन बताई थी? या कह सकते हैं आप सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ y. y क्या आता है? जब हम a से b में डिफाइन करते हैं, a से b में डिफाइन करते हैं तो क्या होगा भाई? जितने a के एलिमेंट्स b से जुड़े हैं, जो b के एलिमेंट्स हैं, यानी a के एलिमेंट्स की जो इमेजेस है, आप ये कह सकते हैं सेट ऑफ इमेजेस. सेट ऑफ इमेजेस इज नोन एज रेंज. तो आपकी जो इमेजेस है वो क्या है? सभी इमेजेस. ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है. दीज आर x y. यहां पर बहुत सारे नंबर हैं, रियल नंबर c. आप जितने भी x1 x2 x3 डॉट डॉट xn जो भी नंबर्स हैं, सबकी इमेज क्या हो रही है? एक ही एलिमेंट का होगा. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन. ये इसका ग्राफ होगा भाई. जो आपकी c की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव. मींस जो आपका ग्राफ है दैट मे बी अबव द x एक्सिस और बिलो द x एक्सिस.
one is next type is identity function. What is identity function? A function f r to r such that fx is equal to x is called identity function on r. fx is equal to x, ये आपका फंक्शन है fx is equal to x. This is called x की वैल्यू 1 है, x is equal to 1 then y is equal to 1, x is equal to 2 then y is equal to 2, x is equal to 3 then y is equal to 3, x is equal to -1 then y is equal to -1, x is equal to 2 then y is equal to -2. So this line, straight line, equally inclined with x axis and y axis passing through the origin. This represents the graph of identity function. Domain of the function is R, set of real number, कोई जो x की वैल्यू है -infinity to +infinity. What is range? इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, x की वैल्यू 1 तो y is equal to fx, y is equal to fx तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2. इट मींस क्या होगा, रेंज इज क्या आएगी, रेंज आपकी क्या आएगी, रेंज इज once again I repeat, the range of the function is r. R means set of real number. check करने एक बार फिर से, y is equal to fx is equal to x, x is equal to 1 then y is equal to 1, x is equal to 2 then y is equal to 2, x is equal to 3 then y is equal to 3. It means domain and range both are same. This is the identity function. Remember this, in identity function domain and range, set of domain means domain of the function and range of the function both will be same. And what about codomain? Codomain तो आप यहाँ से बता ही सकते हैं, जब भी हम लिखते हैं f a to b, it means this function is domain and this set is domain, this set is codomain. ये तो क्लियर है. बात रही रेंज की, तो रेंज क्या होती है, set of all images, that is called, एक मिनट. Now our next type of function is polynomial function. We have discussed the polynomials in 9th class, 10th class. What is polynomial function? Look here beta, a function of the form fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus anx to the power n, where this a0, a1, a2, this an are constant numbers, some constant, some real numbers, and n is a positive integer. n is a positive integer means the degree of the x जो variable है आपका, that should be always positive integer, is called a polynomial function of degree n in x. ये जो in x है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन इज x. हमने जो वेरिएबल लिया है वो x है. n क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन fx is equal to 2x square plus 3x plus 5. दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन. क्या है, डिग्री 2 है, इट मींस दिस इज क्वाड्रेटिक. ये क्या है, fx is equal to x plus 5. दिस इज लीनियर फंक्शन, डिग्री 1 है. fx is equal to x to the power 3 plus 3x square plus 2x plus 5. डिग्री कितनी है, 3 है. इट मींस दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. राइट. द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, जितने डिग्री का ग्राफ होगा, जितने डिग्री का फंक्शन होगा, उसका ग्राफ डिफरेंट होता चलेगा. सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ जो है डिफरेंट टाइप का है. उनके डोमेन और रेंज, डोमेन देखना, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसके क्या है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, fx इज डिफाइंड. तो क्या होगा, दिस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर. राइट. डोमेन और डोमेन सबके डिफरेंट आते चले जाते हैं जैसे जैसे फंक्शन होगा. इन सभी के डोमेन क्या है,
सेट ऑफ रियल नंबर्स है। जो पॉलिनोमियल फंक्शंस आएगा सभी रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा पॉलिनोमियल फंक्शन, तो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज डिपेंड करती है, y की वैल्यू डिपेंड करेगी हर फंक्शन के ऊपर, डिपेंड क्या कैसे कैसे है, किस टाइप का फंक्शन है उसको भी देखना पड़ेगा। तो उसका एक पर्टिकुलर ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल fx = x², ये कोई आपका ग्राफ है, तो इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है। दिस टाइप ऑफ, ये आपका जो है क्या है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक तरह से। तो पॉलिनोमियल तो ये भी है, इसका ग्राफ ये आएगा। जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा सबका ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज रेशनल फंक्शन। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आप लोगों से मैं कभी पूछूंगा रेशनल फंक्शन, आप बताएंगे मुझे रेशनल नंबर की डेफिनेशन। रेशनल नंबर आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। तो रेशनल फंक्शन में और रेशनल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है, डेफिनेशन सेम लगेगी आपको, लेकिन दोनों चीजें डिफरेंट है, नंबर अलग है, फंक्शन अलग है। बात करते हैं रेशनल फंक्शन की। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx upon gx where fx and gx both are polynomial function and gx is not equal to 0। डिफाइन तो हमने भी उसी तरह से किया था, वहां पर भी इसी तरह से किया था, a upon b where b is not equal to 0, a and b are integers। लेकिन फंक्शन में क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड gx is not equal to 0। जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 है, इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। अब मैं बात एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये है एग्जांपल, fx = x² - 3/x+2, x² - 3/x+2। देखना हर एक फंक्शन का डोमेन भी अलग होगा, रेंज भी अलग होगी और उसका ग्राफ भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसकी बात अगर हम करें तो इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है, ये देखना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x fx इज नॉट डिफाइंड। x की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, अगर मैं x+2 को 0 रखूं तो क्या होगा, x = -2। इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x = -2। ध्यान से देखना, अगर आपने x की वैल्यू -2 रख दी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इट मींस क्या है, दिस पॉइंट x = -2 does not belongs to the domain of this function, does not belongs to the domain of this function। so क्या है, set of all real numbers, इसका डोमेन क्या लिखूं, डोमेन इसका fx का क्या होगा भाई, set of all real numbers, बट इसमें तो -2 भी है तो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, -2। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सिमिलरली हम रेंज भी निकालते हैं, आगे जाके बात करेंगे। ये फंक्शन है, दूसरा एग्जांपल आपका fx = x - 5/x+5। यहां पर डोमेन में क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -5। x = -5 रखेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो उसको भी इंक्लूड कर देंगे। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज, और सभी फंक्शंस के ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया था, यहां पर इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फंक्शन fx = 1/x, fx = 1/x, ये भी हमारा एक फंक्शन है बेटा। यहां देखिए सभी रियल नंबर्स के fx = 1/x की बात कर रहे हैं, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ fx = सेट ऑफ रियल नंबर, बट दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर x = 0। तो क्या करेंगे, -0। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेंज के लिए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ y, तो y = 1/x implies that x = 1/y। अब हम y की बात करें तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 4। y = 0 तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो रेंज भी देखना क्या क्या है, y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बट y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज सेट ऑफ रियल नंबर
-0, इसका डोमेन ऑफ रेंज ये हो। वी विल यस नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन a function f r to r such that fx is equal to modulus of x। इसको रीड करते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x का मीनिंग है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का मीनिंग देयर इज नो साइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यू हैव टू कंसीडर ओनली पॉजिटिव साइन इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसको रीड करते हैं जो हम लिखते हैं सिंबल ऐसे, इसको रीड करते हैं मॉडुलस ऑफ x। इसका मीनिंग आपने पहले ही पढ़ा होगा, वैल्यू क्या होगी 2, मॉडुलस ऑफ 2 वैल्यू माइनस मॉडुलस ऑफ -2 ये भी 2, समझ गए ना। नाउ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं -∞ टू +∞। ये आपका ग्राफ है भाई, x 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। आप x की वैल्यू नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। y तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉडुलस x, यानी आप x की वैल्यू चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, x को तो आप 1 लें तब भी y की वैल्यू 1, x को आप -1 लें तब भी y की वैल्यू 1। ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1 तब y की वैल्यू 1 रही है, x की वैल्यू -1 तब भी y की वैल्यू -1, यहां से y की वैल्यू +1 आएगी। x की वैल्यू चाहे नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, y की वैल्यू पॉजिटिव। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। रेंज की बात करें, क्या होगी रेंज इस फंक्शन की? डोमेन तो आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज आप देखना ये आपकी रेंज y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ना रेंज। तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम का सकते हैं y की वैल्यू अप टू इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स या कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स नेगेटिव छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हैं सब तो सब अभी इसको हम ऐसे लिखते हैं क्लोज 0 टू इंफिनिटी और इधर करते हैं ओपन साइन, तो ये आपका होगा 0 टू इंफिनिटी। दिस सेट इज रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। आवर नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होगा? नाम ध्यान रखें, सिग्नम फंक्शन क्या डेफिनेशन होगी? ए फंक्शन f r to r such that fx is equal to modulus of x upon x where x is not equal to 0 and fx is equal to 0 when x is equal to 0। या तो आप इस फंक्शन को ऐसे लिखें और दूसरा टाइप देखिए उसका लिखने का fx is equal to x upon modulus of x when x is not equal to 0 और 0 when x is equal to 0। और तीसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं भाई fx is equal to -1 when x is less than 0, fx is equal to 0 when x is equal to 0 और x is equal to 1 when x is greater than 0। ये तीनों केस हैं। This function is known as signum function। This is known as signum। Domain of this function is R, set of all real numbers। Range of this function is, देखना में रेंज क्या है, y की वैल्यू क्या रही है, या तो -1 है या 0 है, 1 3 ही है, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1 0। क्या ग्राफ आएगा, किस तरह का ग्राफ होता है? ग्राफ यहां ड्रॉ कर लेते हैं। When x is equal to 0, y is equal to 0। When x is greater than 0, तो y की वैल्यू क्या है? ऑलवेज 1, चाहे x की वैल्यू कुछ भी रखें, ये 1। When x is less than 0, तो y की वैल्यू क्या है?
इसको यहाँ पर सर्कल दिखा देते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है तो क्या है 0, और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, इट मींस x इज, यहाँ पर क्या है x की वैल्यू क्या है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को कम करते जाएंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू माइनस, ये डिस्टेंस माइनस, तो दिस इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट वन मोर फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहा हूं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा, ये आपको 12th क्लास में बहुत काम आएगा, बहुत जगह पर यूज करना होगा, और थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, let x belongs to r, x belongs to r means x is any real number, then a function fx is equal to, ऐसे लिखते हैं बेटा, एक जैसे कैपिटल ब्रैकेट होता है, कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज करते हैं x को, दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर, fx is equal to greatest integer x, greatest integer of x is called greatest integer function। क्या यूज करते हैं इसको, क्या मीनिंग है इसका, greatest integer of x means greatest integral value of x, जो x की वैल्यू है उसमें जो greatest integer पार्ट है that is, इसको रीड करें, इसकी वैल्यू हो, हम मींस जो हमारा x रियल नंबर है, रियल नंबर में कितने केसेस हो सकते हैं आपके, रियल नंबर में भाई कोई आपका इंटीग्रल पार्ट हो सकता है और नॉन इंटीग्रल पार्ट भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, कोई डेसिमल नंबर भी हो सकता है, तो उसको हमने कैटेगराइज किया है यहाँ पर, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं क्या होता है फंक्शन, क्यों क्या करेंगे इसको रीड, किसको कहेंगे हम आप, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। वेल एक पार्ट कर लेते हैं, जब x की वैल्यू इंटीजर है, अगर x हमारा इंटीजर है तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0, 0 तो क्या होगा 0, इसकी वैल्यू 0, टोटल इंटीग्रल पार्ट देखते हैं, when x is equal to 1 then 1, when x is equal to 2 तो 2, when x is equal to -1, नेगेटिव इंटीजर भी देख लेते हैं, -1 है तो क्या -1, x की वैल्यू -2 रखी है तो क्या है इसकी वैल्यू -2, x की वैल्यू -3 रखी है तो क्या है इसकी वैल्यू -3, मींस अगर आपकी x की वैल्यू इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या करते हैं, एज इट इज। अब हम दूसरा पार्ट यूज करते हैं, when x is not an integer, इंटीजर नहीं है तो क्या डेसिमल पार्ट होगा, डेसिमल नंबर होगा, कोई डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया f, x की वैल्यू ले ली 0.2, 0.2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2। अब इसको देखेंगे 0.2 को क्या लिखेंगे, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बार यहां देखते हैं सर 0.2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0 प्लस 0.2, 0 प्लस 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, दो पार्ट है इसमें, एक इंटीग्रल और एक क्या होगा डेसिमल, तो इंटीजर पार्ट है 0 और डेसिमल पार्ट है 2, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, तो इस नंबर में 0.2 में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या जाना चाहिए 0। दूसरा एग्जांपल, x की वैल्यू 1.56 ले ले, 1.56 में क्या जाएगा, इस 1.56 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.56, ध्यान रखें जो आपका डेसिमल पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, 1 प्लस 0.56 को हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि इसमें भी क्या है इंटीग्रल पार्ट का कितना है 1 है, तो वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, x में जो इंटीजर पार्ट है वो इसकी वैल्यू है। दूसरा एग्जांपल 1.999 मैंने थोड़ा सा ले लिया, जनरली हम क्या करते हैं इसको सब लोग 2 लिख देते हैं 1.999 को, अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1.999, इसको भी आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया 1 प्लस 0.999। अब इसके दो पार्ट हैं, ये आपका इंटीग्रल पार्ट है और ये आपका डेसिमल पार्ट है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन
वैल्यू केवल 1 आएगी। दूसरा एग्जांपल देखो, कई बार इसको देखते हैं 5.001, इसमें जनरली क्या यूज करोगे कि भाई इसकी वैल्यू 5 आएगी? नो भाई, 5.001 है, आपको सीधे 5 नहीं लिखनी है। रीजन क्या है? रीजन देखेंगे पहले, इसके पीछे रीजन क्या है? 5.001, इसको भी एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 5 प्लस 0.001। अब देखेंगे कि इसकी जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना है? 5 है, तो इसकी वैल्यू भी 5 है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। नेगेटिव नंबर में आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। f -2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -2.5, इसको क्या लिखेंगे? कई बार ऐसे लिख देंगे सब, -2 -0.5। मैंने अभी कहा था अवर डेसिमल पार्ट शुड बी पॉजिटिव, यहां पर तो ये दोनों नेगेटिव है, तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिखें? इस तरह से ना लिख करके आप इसको कैसे लिख सकते हैं? -3 + 0.5, इसको ये भी लिख सकते हैं -3 + 0.5। अब आपका डेसिमल पार्ट पॉजिटिव है, तो अब आपको क्या लिखेंगे कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? -3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -3। और एग्जांपल ले लीजिए, -1.92, क्या करेंगे भाई? -1.92 है, क्या लिख सकते हो उसको? इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है, क्या बनाएंगे? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2 + 0.08। देखना भाई, ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस इसका डेसिमल पार्ट हमने कर दिया ये, तो अब आपका डेसिमल पार्ट को क्या है? 0.08। इंटीग्रल पार्ट क्या है? -2, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? -2। अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देखना, जितने भी मैंने लिखे हैं, क्या इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू आई है? या तो नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, सब जगह देख रहे हैं, या 0 है, तो क्या होगा? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये आपकी रेंज है। ग्राफ भी देखिए इस फंक्शन का, ये ग्राफ है, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया इसमें, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, मैंने मार्क कर लिया x = 0 1 2 3 4, y एक्सिस पर भी ऐसे 1 2 3 4, नेगेटिव -1 -2 -3 -4, x एक्सिस पर भी हम कह रहे हैं x = 0, तो क्या आएगा? 0। when x = 1, तो 1, लेकिन 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं, 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं, सबकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो आपका जो ग्राफ आएगा, 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू है, सॉरी, वो क्या आएगी? 0 आएगी। तो आपका जो ग्राफ आएगा 0 और 1 के बीच में, ये इसको डार्क कर देंगे। फिर 1 से ऊपर जाइए, 1 से आगे, एट x = 1 y = 1 आ जाएगा, fx की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे जैसे आप x से बढ़ेंगे, 0 और 2 के बीच में, सॉरी 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या वैल्यू आएगी? 1, तो ये जैसे आप x = 2 पर पहुंचेंगे तो ग्राफ आपका जंप हो जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा, x = 2 पर ये 2 आ जाएगा, 2 आएगा तो क्या आएगा? 2 इस तरह से आप एक स्क्वायर की तरह से आपका ग्राफ आएगा। यहां पर भी देखिएगा, -1 है तो -1, लेकिन -1 से और 0 के बीच में क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। ऐसे -2 है तो -2 से 1 के बीच में क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देयर आर सम मोर फंक्शंस, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, logarithmic function, trigonometric functions, lowest integral value functions. You have to read and ask the question about that. In next lecture we will discuss some domain and range of this function. Domain, some numerical value, numerical problems will be solved. Okay, thank you very much.